Good morning, students. As you know, we have completed our chapter first of history, French Revolution. But today I am going to repeat this chapter again so that the whole chapter come in a single video. The chapter start with an event of 14 July 1789. What happened during this day? The people of France, they formed a people's militia. People's militia मतलब army of common people, and they attacked on Bastille. Why they attacked on Bastille? But because it was hated by all. It stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. The people of France, वो लोग, फ्रांस के लोग इसके इससे इतनी नफरत करते थे कि इवन इसके जो पीसेस थे ना, इसके टुकड़े थे, उनको भी अपने पास इसके विनाश की याद के रूप में अपने पास रखना चाहते थे। क्यों फ्रांस के लोग इससे इतनी नफरत करते थे? फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन क्यों हुई? इसके क्या रीज़न थे? वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वॉज द division of French society. As you know, the French society was divided into three estates: clergy, nobility, and in third estate there were big businessmen, peasants, small artisans, servants, etc. Now, the people of the third estate, they had to pay the taxes, and the people of the first and second estate, they were getting some privilege by birth. That's why the people of the third estate were against this system. क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट टैक्स पे नहीं करते थे, टैक्सेस का मोस्टली बर्डन किस पर था? थर्ड एस्टेट के लोगों को। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन था कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो थ्री एस्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, सारा टैक्स कौन पे करता था? थर्ड एस्टेट के लोग। इसके अलावा वहाँ पर when Louis XVI became the ruler, he found his treasury empty. जब लुई 16 सम्राट बना, राजा बना, तो उसको अपना खजाना खाली मिला। क्या रीज़न थे? Because long year of war had drained the financial resources of France. Added to this war, the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, Britain. लंबे समय की लड़ाई के कारण और लुईस 16 के अंडर में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज से टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। इनका कॉमन एनिमी दुश्मन क्या था? ब्रिटेन था, और उससे अपनी इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी, और वॉर के कारण उनका काफ़ी खर्चा हो गया था। और लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। जिन्होंने उनको उधार दिया था वो अब लोन के ऊपर 10% जो है इंटरेस्ट जो है चार्जेस करने लगे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड an increasing percentage of its budget on interest payment alone. To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court-running government officer or universities, the state was forced to increase taxes. To fulfill all these requirements, the state had to increase the taxes. अपने इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए अब उनको क्या था? टैक्सेस इंक्रीज करना था। और ऑब्वियसली अगर वो टैक्सेस इंक्रीज करते तो बर्डन किस पर ही आना था? फर्स्ट और थर्ड एस्टेट के लोगों पर। सो you can see figure 2, the system of French society. However, only a small of them owned the land they cultivated. The member of the first two estate, you know that they were getting some privilege, or the member of the third estate, they had to pay the taxes. That's why they were against the system. अब आपने ये फर्स्ट रीज़न क्या था? सोशल रीज़न था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। एक आपने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी जो है थ्री एस्टेट में डिवाइड थी, थर्ड एस्टेट को ही टैक्सेस पे करने पड़ते थे। सेकंड आपने देखा कि लुईस 16 जो है वो टैक्सेस इंक्रीज करना चाहता था। फाइनेंशियल रीज़न ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। लुईस 16 वांटेड टू इंक्रीज टैक्सेस, और बर्डन किस पर आना था? थर्ड एस्टेट पर ही। अब टैक्सेस इंक्रीज करने का सिस्टम क्या था? इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि पेज नंबर 5 पर है।
situation of subsistence crisis. What do you mean by subsistence crisis? An extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. जब आदमी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि फूड है उसी को पूरा नहीं कर पाता, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस क्राइसिस. सब्सिस्टेंस क्राइसिस के रीज़न क्या थे? फ्रांस की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी और इस इंक्रीज़ हुई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए जो है प्रोडक्शन उतना नहीं इंक्रीज़ हुआ और इसके कारण क्या हुआ, जो उनकी बेसिक स्टेपल डाइट थी ब्रेड, उसके प्राइसेस जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो गए. एंड द थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन ड्रोट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस. तो एक रीज़न फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन भी थी, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट ही लोगों की पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो टैक्सेस इंक्रीज, बढ़े हुए टैक्सेस जो है कहाँ से पे करते. तो आपने यहाँ तक दो रीज़न देखे फ्रेंच रेवोल्यूशन के. सोसाइटी का डिवीज़न, सेकंड फाइनेंशियल कंडीशन, थर्ड जो है सिचुएशन ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस. मेनली दीज वर द रीजंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब इस रेवोल्यूशन में एक प्रोटेस्ट करने के लिए एक मिडिल क्लास जो है अमर्ज हुई, और उस मिडिल क्लास में कौन थे? द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class. In addition to merchants and manufacturers, the third estate include professions such as lawyer और administrative official. ये जो थे मिडिल क्लास में थे. और द फिलोसफर सच एज जॉन लॉक एंड रूसो, इन्होंने, इनके आइडिया से लोग मोटिवेट हुए. और in his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch. रूसो ने भी अपनी इस आइडिया को आगे फॉरवर्ड किया. और रूसो जो है, क्या क्या आइडियाज थे उनके? कि द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, कि लोग और गवर्नमेंट के बीच में क्या होना चाहिए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए. इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर. अपनी बुक्स इन द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने क्या आइडिया दिया कि पावर जो है गवर्नमेंट की वो किसी एक ऑर्गन की बजाय लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड होनी चाहिए. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट into force into the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. यही आइडिया जो है यूएसए में पुट हुआ जब उन्होंने 13 जो है कॉलोनीज उनकी ब्रिटेन से इंडिपेंड हो गई थी. इस तरह से ये जो आइडियाज़ थे फिलोसफर्स के, ये सैलून वगैरह में, कॉफ़ी हाउसेस वगैरह में लोगों के द्वारा जो है स्प्रेड किए गए और लोग जो है इनके आइडियाज़ से मोटिवेट हुए. फाइनली द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. अब यहाँ देखिए, आपने देखा कि लुई 16 जो है वो टैक्सेस इंक्रीज़ करना चाहता था. टैक्सेस इंक्रीज़ करने के लिए पास्ट में पहले वहाँ पर सोसाइटी में क्या सिस्टम था? राजा जो है टैक्सेस इंक्रीज़ करने के लिए उसको क्या करना पड़ता था? द एस्टेट जनरल की जो है मीटिंग बुलानी पड़ती थी. एस्टेट जनरल क्या होता है? द एस्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 एस्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें तीनों एस्टेट्स जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती थी. और उसमें फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव, ईच हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. उनको पीछे खड़ा होना पड़ता था. अब द थर्ड लुई 16 जो है, और उसके अलावा उसमें क्या होता था? वोटिंग इन द एस्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट. क्या प्रिंसिपल पे अकॉर्डिंग होती थी कि हर स्टेट को जो है 1 ही वोट काउंट किया जाता था. और लुई 16 ऑब्वियसली एक वोट फर्स्ट का, एक सेकंड का, थर्ड का, तो मेजोरिटी जो है फर्स्ट और सेकंड के फेवर में जाती थी. अब लुई 16 जो है उसी प्रिंसिपल को कंटिन्यू करना चाहता था, बट मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, कि अब जो है वोटिंग पूरी असेंबली के लोग जो है इंडिविजुअली अपने अपने असेंबली के अकॉर्डिंग करें. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो कि रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया. When the king rejected this proposal, member of the third estate walked out of the assembly in protest. और जब राजा ने उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो प्रोटेस्ट में असेंबली में से लोगों ने वॉकआउट कर दिया. यानी कि उन्होंने कहा कि जब तक उनको उनके प्रपोजल को नहीं माना जाएगा वो जो है इस असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे. और उन्होंने दे डिक्लेयर देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली, अपने आप को जो मेंबर थे थर्ड एस्टेट के, जो कि इसमें जनरल एस्टेट जनरल
की बॉडी में थे, उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया, नेशनल असेंबली, और कसम खाई कि जब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक जो है फ्रांस अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर देता, और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, राजा की पावर्स पर लिमिट लगाएगा, रोक लगाएगा कि राजा जो है अपनी पावर का अपने मन से यूज़ नहीं कर पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स किंग को दी जाएंगी, किंग उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है अपनी पावर का यूज़ करेगा। और ये उनकी जो मीटिंग थे, उनके लीडर थे मीराबे एंड अबीशिया। मीराबे वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। मीराबे बिलोंग तो नोबल फैमिली से करते थे, बट वो इस सिस्टम के अगेंस्ट थे जो फर्स्ट सेकेंड एस्टेट जो है प्रिविलेज लेती थी। और इस तरीके से जो नेक्स्ट है आपके अभिषा, वो भी एक प्रेस थे, और उन्होंने भी जो है इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट वगैरह लिखे, जिसको क्या कहा गया, व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। इस तरह से आपने देखा कि फ्रांस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और फाइनली अपने इस तरह के रेवोल्यूशनरी लोगों की पावर को देखते हुए फाइनली लुई 16 अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन टू द नेशनल असेंबली। फाइनली लुई 16 ने नेशनल असेंबली का रिकॉग्नाइजेशन दे दी, और इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी पावर जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी। और एंड द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास अ डिग्री ऑफ अबॉलिशिंग द फ्यूडल प्रिविलेज ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। इस तरीके से असेंबली ने 1789 को जो है ये प्रपोजल पास कर दिया। मेंबर अब इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, उनको भी टैक्सेस पे करना पड़ता था। और इस तरह से आपने देखा कि फ्रांस जो है क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी कि राजा होगा, लेकिन वो अपनी पावर का यूज़ किसके अकॉर्डिंग करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मुनार्क। इसका मेन एम क्या था, मुनार्क की पावर पर लिमिट लगाना, कि मुनार्क जो है वो अपनी पावर का अनलिमिटेड यूज़ नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेगा। और वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यहाँ तक आपने देखा कि पहले फ्रांस में स्टार्टिंग में लुई 16 था। लुई 16 अब फ्रांस क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी कि राजा जो है अपनी पावर का यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेगा, और पावर का डिवीजन जो है थ्री ऑर्गन्स में कर दिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी में क्या थे, जज, एग्जीक्यूटिव में किंग होता था, मिनिस्टर होते थे, और लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली, जो कि आपने देखा लास्ट में बनी थी नेशनल असेंबली, जिसमें 745 मेंबर्स थे, और उनको वोट डालने का राइट था। इस तरीके से आपने देखा फ्रांस क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब यहाँ पर बात आती है कि वोट डालने का राइट किसको था, वोट कौन डालते थे। लेजिस्लेचर के जो ये मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे, ये वो इनको कौन इलेक्ट करता था, वोट कौन डालते थे, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, हम इनको यहाँ पर बताएंगे। एक्टिव सिटीजन्स वो थे जिनको वोट डालने का राइट था, ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, और जो कि 3 डेज के वेजेस के इक्वल जो है टैक्स पे करते थे, दे वर कॉल्ड एक्टिव सिटीजन। बाकी 25 ईयर्स से बिलो एज वाले और विमेन, और जो कि टैक्स पे नहीं करते थे, वो किस में काउंट किए जाते थे, पैसिव सिटीजन्स में। इसका मतलब विमेन को वोट डालने का राइट नहीं था, केवल मैन को था, और जिनकी एज 25 ईयर्स से अबव थी उनको था, और जो 3 डेज के इक्वल वेजेस 3 डेज के वेजेस के इक्वल जो है टैक्स पे करते थे, उनको राइट था वोट डालने का। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फ्रांस के अंदर, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डेक्लारेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। और उस राइट के अंदर, उस डेक्लारेशन में क्या कौन से राइट्स दिए गए, सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कि जैसे सब इक्वल हो गए, सबको टैक्स पे करना पड़ता था, वर एस्टेब्लिश एज नेचुरल राइट्स। फाइनली फ्रांस, अब यहाँ तक आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, यू कैन सी रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, दीज आर द सिंबल्स, यू ड्रॉ दीज सिंबल्स इन योर फेयर नोटबुक एज अ प्रोजेक्ट वर्क, सो दैट द मीनिंग ऑफ दीज सिंबल्स बिकेम क्लियर टू यू। यहाँ पर आप एक ब्रोकन चेन का सिंबल दे सकते हैं, चेन का, और ये अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, क्या शो कर रही है कि फ्री को।
द बंडल ऑफ रोड्स, बंडल क्या शो कर रही है, स्ट्रेंथ को, यूनिटी को। इस तरीके से आपके डिफरेंट सिंबल्स हैं जो आप इस पेज पर देख सकते हैं। आपको ये ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट आ जाइए, फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब फ्रांस के अंदर मोनार्क को भी अबोलिश कर दिया गया और फ्रांस को क्या बना दिया गया, एक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है व्हेन द हेड ऑफ द कंट्री इज एन इलेक्टेड मेंबर, नॉट हेरिडिटरी पोस्ट। अब द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। आगे जाने के बाद फ्रांस के अंदर सिचुएशन और भी टेंस होगी, क्योंकि जो रूलर था लुइस 16 था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर दिए थे, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं था और उसने अपनी सीक्रेट जो मीटिंग जो है विद द किंग ऑफ प्रूशिया, प्रूशिया के किंग के साथ मीट की। और दूसरे जो रूलर थे वो भी इस बात से वरीड थे कि हमारी कंट्री में भी इस तरह की रेवोल्यूशन ना हो जाए और कहीं हमारी पावर्स भी जो हैं इस तरह से लिमिटेड ना हो जाएं। तो उन्होंने जो है इस रेवोल्यूशन को सप्रेस करने के लिए जो है इन द अपने उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की। और फाइनली जब असेंबली को इस बात का पता चला तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी। वॉलंटियर्स जो है अपनी इच्छा से इन रूलर्स के अगेंस्ट जो है उन्होंने अपनी आर्मी बनाई और प्रोटेस्ट किया। द रेवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉड लूजेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर किंग के बीच में और जो लोगों के बीच में, इससे सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है फ्रांस के अंदर डिफ़िकल्ट हो गई। जहाँ मैन जो है वो फाइटिंग के लिए फ्रंट पे जाते थे, वहीं विमेन को जो है सारे वर्क जो है लुक आफ्टर करने पड़ते थे। और large section of the population worker means that the revolution had to be carried further as the constitution of 1791 gave political right only to the richer section of the society। क्योंकि आपने देखा कि इसमें भी वोट डालने का राइट केवल उसी को था जो टैक्स पे करता था, कितना, 3 डेज के बेसिस के इक्वल। इसका मतलब बाकी लोगों को तो वोट डालने का राइट नहीं था। इस तरीके से द मोस्ट सक्सेसफुल लोगों ने अपने क्लब बनाए इनके अगेंस्ट, और उनमें सबसे सक्सेसफुल क्लब जो क्या था, जैकोबिन क्लब। और उसका जो लीडर था, द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। A large number group among the Jacobin decided to start wearing long straight trousers similar to those worn by dock workers। अब आपने देखा कि यहाँ पर लोगों ने किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए अपने क्लब बनाए और वो क्लब जो है बहुत फेमस हुए फ्रांस के अंदर। उस क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। नेक्स्ट फेज में आप देखेंगे कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जो है इन द समर ऑफ 1792 Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food, and on the morning of August 10 they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guard and held the king himself as hostage। उन्होंने वहाँ पर अटैक किया, जो राजा था वह उसको बंदी बना लिया और फाइनली जो है फ्रांस के अंदर इलेक्शन हुए। एंड नाउ फ्रॉम नाउ of all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. The newly elected assembly was called the convention. On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic। यहाँ पर आपने क्या देखा कि अब 1792 में फ्रांस क्या बन गया, एक रिपब्लिक। पहले फ्रांस में लुई 16 था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी और अब फ्रांस 1792 में क्या बना, एक रिपब्लिक बना। अभी मैंने आपको बताया था रिपब्लिक मतलब व्हेन द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, नॉट एन हेरिडिटरी मोनार्क। नाउ लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब देशद्रोह। ऑन 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस डिलो कॉनकॉर्ड। द क्वीन मैरिनी एंटोनी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। उसके बाद उसकी जो वाइफ थी उसके साथ भी वही हुआ। नेक्स्ट अब किसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, रेन ऑफ टेरर। इसके बाद लुई 16 के बाद वहाँ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की गवर्नमेंट आई। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 94 is referred to as the reign of terror. Why this time period was called reign of terror? Because Robespierre followed his policy so strictly that even his followers were also against him. Anyone whom he found guilty was guillotined। जिसको भी के अंदर उसको अपराध नजर आता उसको क्या कर दिया जाता था, गिलोटिन कर दिया जाता था। इसके कारण जो उसके फॉलोवर्स थे वो भी उसके अगेंस्ट हो गए। यहाँ पर कुछ रॉबस्पियर की पॉलिसीज़ हैं जो कि उसने इंट्रोड्यूस की,
जैसे मीट एंड ब्रेड वर रेशन, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। पीजेंट्स जो है उनको उसी प्राइजेस पर अपने फूड ग्रेन्स बेचने पड़ते थे जो कि प्राइजेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किए थे। दीज आर द पॉलिसीज ऑफ मैक्सिमिलियन रॉसपेयर। वाइट फ्लोर जो मैदा होता है उसको बैन कर दिया गया, सबके लिए इक्वल जो है इक्वलिटी के अकॉर्डिंग एक ही होल व्हीट जो है वो कर दिया गया। ये दीज आर द पॉलिसीज ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। और फाइनली रॉबस्पियर को भी 1794 में अरेस्ट कर दिया गया और ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन, क्योंकि उसके फॉलोवर्स भी उसकी इस तरह की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थे। अब ये फोर्थ था आपका मैक्सिमिलियन, रिपब्लिक बना फ्रांस, फिर वहाँ पर मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का रूल आया और उसके बाद अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल के बाद अब जो वेल्दी पीपल थे उनको एक मौका मिला वहाँ पर अपनी पावर करने का। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विद डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें जो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनके को वोट डालने का राइट नहीं था। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। These then appointed a directory and executive made of 5 member। एक डायरेक्टरी थी, उसमें एग्जीक्यूटिव जो कितने मेंबर्स थे उसमें 5 मेंबर। लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव थी जिसमें कि 5 मेंबर्स थे। लेकिन हमेशा इस एग्जीक्यूटिव में और इसमें लेजिस्लेचर में आपस में क्लैश चलता था और इसका फ़ायदा जो है किसने उठाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने। द Political instability of directory paved the way for the rise of a military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब फ्रांस में किसका रूल आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट का। ये आपने फ्रांस की हिस्ट्री में डिफरेंट फेजेस देखे। Through all these changes in the form of government, the ideas of freedom of equality before the law and fraternity remained inspiring ideas that motivated political movement in France and rest of the Europe during the following century। डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या जो वीमेन थी उन्होंने भी रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, वीमेन का रेवोल्यूशन के अंदर क्या रोल था। तो जो वीमेन थी बिगिनिंग में आपने देखा स्टार्टिंग से ही जो वीमेन भी रेवोल्यूशन के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन किया उन्होंने, उनको डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करने थे। आपने देखा दे वर्क एज सी मैट्रिसेस, यानी कि स्टिचिंग ऑफ क्लोथ्स का भी काम करती थी, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स का काम करती थी, सॉल्ट फ्लावर्स फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब काम करती थी। उसके साथ साथ वीमेन को जो है आउटसाइड के काम भी करते थे, डोमेस्टिक वर्कर का भी काम करती थी। मोस्टली वीमेन जो है एजुकेटेड नहीं थी, ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स हैड दे वर एजुकेटेड। वर्किंग वीमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली। वर्किंग वीमेन को बाहर के भी काम करने पड़ते थे और अपने घर की फैमिली को लुक आफ्टर के भी काम करने पड़ते थे। लेकिन देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन, उनको मैन के अकॉर्डिंग इक्वल वेजेस नहीं मिलते थे, मैन के कंपैरिजन में उनके वेजेस लो थे। अबाउट 60 वीमेन क्लब केम इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़, और इस तरीके से 60 वीमेन क्लब जो है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर बने हुए थे। जैसे आपने देखा मैन के जैकोबिन क्लब थे, इसी तरीके से वीमेन के भी थे। उनमें से थे द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, यहाँ पर वॉज की जगह वर आएगा, वर द मोस्ट फेमस ऑफ देम। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज द वीमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। और जो क्लब थे इनकी मेन डिमांड क्या थी कि विमेन को भी सेम राइट मिले जो कि मैन को भी मिले हैं, राइट टू वोट। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, क्या डिमांड थी, राइट टू वोट की, और टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस की असेंबली में वो भी इलेक्टेड हों। आपने इस तरह से विमेन का रोल देखा फ्रांस के अंदर। द लॉज इंट्रोड्यूस दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ विमेन। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए जो कि विमेन की हेल्प करने के लिए, क्या स्पेशली विमेन के लिए क्या लॉज इंट्रोड्यूस किए, क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। पहले क्या था, केवल वेल्दियर पीपल जो थे उनकी डॉटर एजुकेशन लेती थी, अब जो है स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी सबके लिए। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा के अगेंस्ट जो है फादर उनकी मैरिज नहीं कर सकते थे। और मैरिज वॉज मेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। डिवोर्स जो है वो भी लीगल कर दिया गया और मैन और वीमेन दोनों ही अपनी तरफ से डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। दीज आर द सम लॉज पास फॉर वॉज फॉर मेनली फॉर द वीमेन।
Women struggle for equal political right, however, continued during the reign of terror. रेन ऑफ टेरर के टाइम पीरियड में, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के टाइम पीरियड में भी विमेन की स्ट्रगल जो है कंटिन्यू रही, लेकिन मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर ने जो विमेन उस क्लब जिन्होंने उन्हें बनाया हुआ था उनको बैन करा दिया, और द राइट टू वोट फॉर वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल। इस तरीके से विमेन भी मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के अगेंस्ट थी। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वीमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर वॉज kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote, और finally 1956 में फ्रांस में विमेन को वोट डालने का राइट मिला। यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी विमेन है ओलंपी दी गॉज, उसके बारे में बताया गया है। मेनली उसने लोगों विमेन को मोटिवेट किया। कौन थी ये सारा, इसके बारे में आप शॉर्ट नोट करेंगे। वो इस डेक्लारेशन के अगेंस्ट थी कि ये डेक्लारेशन जो था केवल मैन और सिटीज़न के लिए था। उसने अपना जो है डेक्लारेशन राइट ऑफ वीमेन एंड सिटीजन इंट्रोड्यूस किया और उसमें एड्रेस किया, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन 1793 ओलंपी डी गॉजेट क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट। उसने जैकोबिन गवर्नमेंट को क्यों क्रिटिसाइज़ किया? क्योंकि उन्होंने विमेंस के जो क्लब बंद करवा दिए गए थे। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्जेज हर विद ट्रेजन, और उसके अगेंस्ट भी प्रिजन का आरोप लगाकर उसको भी एग्जीक्यूटेड करा दिया गया था। अब यहाँ आप देखेंगे एक नया टॉपिक है द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड? जो ट्रेड यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में होता था उसको स्लेव ट्रेड कहा जाता था। प्लांटेशन के लेबर जो थे उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्लेव्स हैं उनका ट्रेड होता था, और बोर्डेक्स और नैंकिस ये जो दो पोर्ट थे यहाँ से स्लेव्स जो है इनका ट्रेड होता था। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। फ्रांस में स्लेवरी को भी क्रिटिसाइज किया गया, और नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडेड दोज इन द कॉलोनीज। बट ये लॉ पास नहीं हो पा रहा था क्योंकि अपोजिशन में बिजनेसमैन थे और वो बिजनेसमैन इस स्लेव ट्रेड को बंद नहीं करना चाहते थे, उनकी इनकम इसी पर डिपेंड करती थी। बट फाइनली इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। लेकिन 10 ईयर्स के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। फाइनली 1848 में ये स्लेवरी अबॉलिश हो गई। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रेवोल्यूशन और का एवरीडे लाइफ, लोगों की, मैन की, वीमेन की, बच्चों की एवरीडे लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या चेंजेज आए उनकी लाइफ में, तो यहाँ आप वो सब चेंजेस देखेंगे। वीमेन की ड्रेस, कपड़े पहनने के ढंग में, उनके बोलने के तरीके में, और बुक्स जो है उनके मटेरियल में ये सब चेंजेस आए। क्योंकि इससे पहले 1789 से पहले वहाँ पर क्या था, सेंसरशिप था। इन 1789 इट वॉज अबॉलिश। अकॉर्डिंग टू दिस नाउ द पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। सेंसरशिप में क्या होता था, कोई भी बुक, कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश होने से पहले किंग के सेंसर बोर्ड से पास होना पड़ता था, तभी वो पब्लिश होता था। अब सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया था। अब पीपल फ्री थे अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। अब वो हर उस इवेंट्स को, हर उस चेंज को जो कि फ्रांस में होता था उसको फ्रीली डिस्कस कर सकते थे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। और ये सारी लोग प्लेस के, सॉन्ग्स के, फेस्टिवल प्रोसेशंस के अट्रैक्टेड होते थे, ये ज्वाइन करते थे और यहाँ पर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते थे। ये एक अच्छा तरीका था अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का, क्योंकि जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे उन्होंने जो आइडियाज़ थे उनको लिखा, वो केवल कुछ ही लोग पढ़ पाते थे, बाकी उनको नहीं पढ़ पाते थे। इसलिए ये वो अपने व्यूज़ जो है प्लेस और सॉन्ग्स के थ्रू एक्सप्रेस करते थे, एक्सप्लेन करते थे। नाउ इन 1804 नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर किया। आसपास की जो नेबरिंग जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन पर कंट्रोल किया और उनकी कमान जो है अपनी फैमिली के मेंबर्स को ही दे दी। स्टार्टिंग में लोगों को नेपोलियन जो है एक लिबरेटर लगा, पर जल्दी ही उनको रियलाइज़ हुआ कि ये एक लिबरेटर नहीं है। ये क्या है, इसका मेन मोटो आर्मी का क्या है, पावर को अपनी आसपास के एरिया पर कंट्रोल करना। जो लॉ जो है
नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया, उसमें से थे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ये लॉज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, बट फाइनली इन 1850 इन द वाटरलू वॉर he was defeated. Many of his measures that carried the revolutionary idea of liberty and modern laws to other parts of the Europe had an impact on people long after Napoleon had left. नेपोलियन के जाने के काफ़ी लंबे समय बाद उसके जो आइडियाज़ थे, रेवोल्यूशनरी आइडिया थे, लिबर्टी और मॉडर्न लॉज, वो यूरोप के दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड हुए। यहाँ पर अब हम लास्ट में देखेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसकी लोगों से कौन से आइडियाज़ विरासत के रूप में मिले। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये आइडियाज़ फ्रांस से वर्ल्ड की यूरोपियन दूसरी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हुए, और ये आइडियाज़ जो है लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन से विरासत के रूप में मिले। यहाँ पर टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ ऑफ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। सो in this chapter you have seen different phases of French हिस्ट्री। फ्रांस की हिस्ट्री के आपने देखा कि कैसे वहाँ पर स्टार्टिंग में लुई 16 था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर रिपब्लिक आया वहाँ पर, उसके बाद डायरेक्टरी का रूल आया, फिर नेपोलियन बोनापार्ट का आया, और फाइनली नेपोलियन भी बोनापार्ट भी डिफीटेड हो गया। इस तरह से आपने डिफरेंट फेजेस जो है फ्रांस की हिस्ट्री के देखे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजंस देखे। ओके, थैंक्स।